Morning students, this is KK Bhatt here. Dear students, once again I am here with our triumph of surgery of class 10th English, footprint without fit. In the previous video, I had taught you page number 1, 2 and 3. Today I am also in page number 3. As you can see through the screen, at the surgery, the household dogs surge round me. At the surgery means at the hospital. आप कह सकते हो at the hospital. Household dogs, the dog who lives in the house recently, surged around me, moved around him, covered him. Tricky looked down at the noisy pack. जो ट्रिकी है वो लुक डाउन नीचे देखता है टूवर्ड नॉइजी पैक, जो शोर हो रहा थे, जो शोर करने वाले जो डॉग्स थे उनको वो देखता है. एंड व्हेन पुट डाउन जब उसको नीचे रख दिया जाता है, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो ही जस्ट ले डाउन ऑन द कारपेट विदाउट एनी मोशन, बिना किसी मोशन के वो जो है कारपेट पे लेट जाता है. he do not give any moments, he does not give any moment in his body, he did not give any moment in his body. The other dog, दूसरे जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, स्नीफिंग राउंड आफ्टर स्नीफिंग राउंड मतलब उसको जो है स्निप करते हैं, उसको राउंड सूंघते हैं, स्मेलिंग करते हैं, फिर उसके चारों तरफ घूमते हैं फॉर ए फ्यू सेकेंड. देन डिसाइडेड, तब वो डिसाइड करते हैं ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट. तब वो डिसाइड करते हैं कि ये जो डॉग है ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. दैट इज़ वाई फाइनली ही leave the dogs, ignore him, finally they leave the dog, वो डॉग को छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं. Now see the second paragraph of this page. I made up a bed for him. I means Dr. Harriet. Dr. Harriet said that he made up a bed for him in a warm loose box में next to the one where the other dogs live. यानी उस जगह पे जहाँ सभी डॉग्स होते थे उसमें से एक डॉग के बगल में उन्होंने एक लूज बॉक्स लिया, उसमें वार्म बेड उसके लिए तैयार किया. For 2 days I kept an eye on him. Dr. Harriet said that he continually observed him for 2 days. 2 दिनों तक उसको कंटिन्यूली जो है ऑब्जर्व करते रहे. Giving him no food during these days he has not given him any food. During these days he has not given him any food. यानी 2 दिनों तक उसको कोई भोजन नहीं दिया. But plenty of water. But he has given him only to drink more and more water as he can. At the end of the second day, दूसरे दिन की समाप्ति पर, he started to show some interest in his surrounding. He started to see the things which is surrounding him, and he just take interest on those things. On the third, तीसरे दिन क्या होता है, he began to whimper means होता है cry with a low whine, मतलब धीरे धीरे आवाज़ में कराहना. ठीक है, तो धीरे धीरे आवाज़ निकालना. तो वो देखते हैं कि 2 दिनों तक तो उसने कोई साउंड नहीं निकाला, बस वैसे लेटा रहा, पानी पीता रहा. बट आफ्टर थर्ड डेज he just began to cry with a low whine when he heard a dog in the yard. जब उसने डॉग्स को यार्ड में भौंकते हुए सुना तो he also started to cry with a low whine. Now see here the next paragraph. When I opened the door, here
Dr. Harris said that when I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Zoe, the greyhound, and his friend. After rolling him over and thoroughly inspect, inspecting him, the dogs moved out down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Later that, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowl. There was the usual headlong rush, followed by the sound of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. Now, see here the explanation of this particular paragraph. When I opened the door, when Dr. Harriet opened the door, what's happened? Tricky tottered, Tricky walked out. Tricky walked out and was immediately engulfed and was immediately covered by Joe, the greyhound, the hunting dog. जो कौन है? एक हंटिंग डॉग है एंड इस फ्रेंड और उसके मित्रों के द्वारा. इट मीन्स जैसे ही मिस्टर हैरियट ने डॉक्टर हैरियट ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि ट्रिकी जो है वो बाहर निकल रहा टहलते हुए एंड तत्काल तुरंत वो जो है ये जो जो हंटिंग डॉग है और उसके फ्रेंडों के द्वारा कवर्ड कर लिया जाता है, उसको घेर लिया जाता है. मतलब दोज डॉग्स इन्वॉल्व टू entertain him. After rolling him, they push him over. मतलब वो धक्का देते हैं उसको, पूरी तरह से गिराते का प्रयास करते हैं. thoroughly inspecting him, फिर वो उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं. The dogs moved up down. The dogs went from there in toward the garden. फिर वो बागीचे में चले जाते हैं. ट्रिकी फॉलोड देम. अब ट्रिकी क्या करता है? उनके पीछे पीछे वो भी जाता है, उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है. रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए अपने इस स्लाइटली जो स्लो धीरे धीरे चलते हुए अपने सरप्लस फैट से, जो उसका सरप्लस फैट है, जो ओवर वेट है, उसके माध्यम से वो धीरे धीरे मूव करते हुए आगे बढ़ता है. लेटर दैट डे, उसके बाद I was present of feeding time. After that, Dr. Harriet was present at feeding time. मतलब खाना जब दिया जा रहा था उस समय डॉक्टर हैरिट वहाँ उपस्थित होते हैं. I watched while Tristan that is a caretaker of dog. Tristan कौन है? आपसे पूछा जाता है who is Tristan, तो आपका आंसर होगा Tristan was a caretaker of dogs. तो आप कह रहे हैं लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. ही वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. ही वॉज प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन द अदर डॉग्स वॉज टेकन फूड. आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड. अब वो कह रही है कि वो कह रहा है कि मैं देख रहा था उसको जब ट्रिस्टन जो था वो भोजन उसको परोस रहा था इनटू द बाउल, कटोरे में. जब बाउल में ट्रिस्टन उसको भोजन परोस रहा था तो वो बड़े ध्यान से उसको देख रहा था. There was the usual headlong rush. हमेशा की तरह एक यूजुअल हेडलॉग रश था. हमेशा की तरह एक कंपटीशन चल रहा था, एक दूसरे को से आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, एक स्ट्रगल कर रहे थे. फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. और इस तरह से वो समझ सकता है कि जो बहुत तेज़ हाई स्पीड ईटिंग, बहुत तेज़ खाने की आवाज़ वो सुन सकता था डॉग्स का, और खाने के लिए एक दूसरे से वो लोग जद्दोजहद कर रहे थे, एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे. एवरी डॉग न्यू, प्रत्येक डॉग जानता था दैट इफ़ यू फेल बिहाइंड अदर्स, अगर वो दूसरों के पीछे गिर जाता है, ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ इट, तो वो लायबल हो जाएगा कुछ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने अंतिम मील के लास्ट पार्ट, जो उसका अंतिम मील है, जो अंतिम भोजन है उसको लेने के लिए उसको कंपटीशन करना पड़ा. अगर वो बैक हो जाता है तो इट मे बी अदर डॉग हैव टेकन हिज पार्ट ऑफ मील, जो दूसरे डॉग हैं हो सकता है उसके मील को खा जाए, उसके भोजन को खा जाए. दैट इज़ वाई फाइनली ही हैज़ टू टेकन
a lot of struggle. That is why he has to taken a lot of struggle. उसको काफ़ी struggle करना पड़ता है. आगे देखो. When they had finished, जब उन लोगों ने अपना भोजन समाप्त कर लिया. When they had finished, जब उन डॉग्स ने अपने भोजन को समाप्त कर लिया. When they had finished their feed. Tricky took a walk round the shining bowl. जब डॉग्स जो थे वो अपना भोजन लेके चले गए तो ट्रिकी जो था टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल. जो शाइनिंग बॉल है, जो चमकते हुए कटोरी थे, उनके चारों तरफ एक राउंड लेता है, उसको देखता है, इंस्पेक्शन करता है. लीकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम. उसमें एक या दो जो part of meal left in the bowl, 1 or 2 part of meal left in the bowl. Tricky just started to licking those. Tricky just started to licking those food stuff. Next day, an extra bowl was put up for him, and I was pleased to see him jostling his way toward it. From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about the dogs, joining in their friendly scrimmage. He discovered the joy of being bowled over, tramped on, and squared every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share of meal, and hunting rat in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. What do you understand? When they had finished, Ricky took a walk round the बाउल लीकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2. जो एक दो पार्ट कटोरे में पड़े हुए थे उसको वो खाता है. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट. दूसरे दिन डॉक्टर हैरिट क्या करते हैं, एक बाउल उसके लिए भी रख देते हैं. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, यानी उसके लिए एक दूसरा बाउल भी रख देते हैं. एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम. राइटर बिकम वेरी हैप्पी टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड इट. जो उन लोगों के साथ स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था. यानी कि जब उन्होंने टिकी को देखा कि ही वॉज आल्सो स्ट्रगलिंग, वो संघर्ष कर रहा है टू गो अहेड विद दोज डॉग. तो दैट इज़ द सेंस दैट ही वॉज रिकवरिंग वेरी सून. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत तेज़ वो रिकवर कर रहा था. नाउ सी हियर, from then his progress rapid. उसके बाद क्या होता है, from then his progress was rapid. progress was rapid का मतलब rapid means fast. from then उसके बाद क्या होता है, his progress was rapid. उसका जो सुधार होता है, जो इम्प्रूवमेंट होता है, वो बहुत तेज़ी से होता जाता है. मतलब from then on his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the eggs, with the dogs joining in their friendly screams. He discovered the joy of being bowled over, tramped on, and squared every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. All the while, Mrs. Pumphrey hovered earnestly in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. I dodged the question about whether his question were being turned regularly or his correct code, or according to the weather, but I was able to tell him
tell her that the little fellow was outer dangerous and convalescing rapidly. See from then on, तो उसके बाद हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, जो उसके अंदर सुधार था, जो इम्प्रूवमेंट हो रहा था वो बहुत तेज़ी से होने लगा. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई भी मेडिसिन ऑफ एनी काइंड, उसको किसी भी तरह की दवा नहीं दी गई. ही हैज़ नॉट गिवन एनी टाइप ऑफ मेडिसिन, मतलब उसको किसी भी तरह की दवा नहीं देनी गई. बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद डॉग्स, बल्कि पूरा दिन जो है वो डॉग्स के साथ दौड़ता रहता था, कूदता खेलता रहता था. ठीक है. ही रैन विद द डॉग ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज. तो ज्वाइनिंग मतलब होता जो फ्रेंडली स्क्रिमेज हैं, जो उनके दोस्त हैं जिनके साथ वो जुड़ जाता है, उन लोगों के साथ वो स्ट्रगल करता है. उन लोगों के साथ क्या करता है, वो स्ट्रगल करता है, आराम से उन लोगों के साथ रहता है. ये डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर. बोल्ड ओवर मतलब डिफीट ओवर, मतलब हारने के बावजूद भी जब उन लोगों के साथ वो रहता था, डॉग्स जो थे उसको उसके ऊपर अटैक करते थे, और इस कंडीशन में जो डॉग्स थे जब उसके ऊपर अटैक करते थे, उसको रोल्ड ओवर करते थे तो वो गिर जाता था. तो उस डिफीट में भी उसको आनंद मिलता था. ट्रैप्ड कुत्ते जो थे उसको ट्रैपिंग, पैरों के नीचे दबाते थे, उसके ऊपर से आते जाते टर्न ओवर होते थे. स्क्वैड उसको पैरों से दबाते हुए आगे बढ़ा, एवरी फ्यू मिनट, हर क्षण ऐसा वो कुत्ते उसके साथ करते थे. एंड ही स्टार्टेड टेक एंजॉय इन दिस गेम. इस गेम में वो क्या करता था, एंजॉय करता था, उसको आनंद आता था. ही फील्स हैप्पी विथ देम, उन लोगों के साथ उसको हैप्पी नज़र आता था. ही डिस्कवर्ड जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर ट्रैप्ड ऑन एंड स्क्वाड. ही बिकेन एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. इस तरह से वो एक एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग हो गया. लाइक सिल्की लिटिल, उसके सैगी बार थे, झब्बर बार थे, बड़े बड़े बाल थे. फाइटिंग लाइक टाइगर फॉर हिज शेयर ऑफ मेडिसिन मिल टाइम. मिल टाइम अपने शेयर को खाने के लिए वो ऐसे संघर्ष करता था जैसे कोई टाइगर हो. एंड हंटिंग रैट इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट. और रात में जब वो पुराने मुर्गी घर पार्क के पास जाता था तो वहाँ जा कर के वो चूहों का शिकार भी करना सीख गया था. ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ. इस तरह का टाइम उसके जीवन में कभी नहीं आया था. ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे हावर्ड एनेक्सिटी इन द बैकग्राउंड. और पीछे जो मिसेस पंफ्रे की हालत थी वो बिल्कुल चिंताजनक थी. रिंगिंग ए डजन टाइम ए फ्यू डेज फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन. और उसके बारे में जानने के लिए वो प्रतिदिन लगभग 12 टाइम्स फ़ोन करते थे. आई डोज द क्वेश्चन, में उनको क्वेश्चनों को डोज करता था कि बुद्धिमानी से उसको हटा देता था. डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन. आई डोज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वेयर बिहाइंड टर्न. तो वो पूछती थी ऐसे क्वेश्चन कि उसके क्वेश्चन बदले गए कि नहीं. रेगुलरली जो उसको कोट पहनना है ठंड के हिसाब से वो पहना जाता है कि नहीं. तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन वो रिलेटेड डॉग्स पूछते थे. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर्स. इन सब के बाद भी मैंने उनको ये जवाब देता था कि लिटिल जो डॉग है वो आउट ऑफ डेंजरस है, अनकन्वीनियंस, और बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसके अंदर. यानी वो बताते थे उसको, ठीक है, कि जो हमारा जो, ठीक है, तो आई वॉज एबल टू टेल हर, वो उसको बताते थे कि द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर्स एंड रिकवरिंग वेरी फास्ट. बताते कि बहुत तेज़ है वो रिकवर कर रहा है. द वर्ड कन्वलेंसिंग सिम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे. ये जो रिकवरिंग वर्ड है उसको सुन करके मिसेस पंफ्रे को रिलैक्स मिलता है. स्टार्टेड टू बिग राउंड फ्रेश एग. ठीक है, अब वो जो है अब डॉग के लिए धीरे धीरे उन्होंने 12 एग्स भेजना शुरू कर दिया. 2 डजन एट अ टाइम, 2 दर्जन अंडे वो भेजते थे. टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ की सेहत को बनाने के लिए. फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 एग्स. और हम लोग के लिए बहुत ही खुशनुमा पीरियड था क्योंकि मैं और मेरा जो
गार्डनर दोनों मिल करके उसको भोजन को करते थे। I had 2 eggs and I had 2 eggs each for breakfast and but when the bottle of wine began to, तो मतलब नाश्ते के बाद 2 अंडे वो ले लेते, नाश्ते के टाइम 2 अंडे वे खाते थे। लेकिन जब शराब की बोतलें आनी शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ सिचुएशन बिगन टू टर्न ऑन हिज हार्ट, तो एक सौ जो वास्तविक संभावना जो थी सिचुएशन की, बिगिन टू डाउन, ठीक है, वो उस घर में दिखने शुरू हो गए। इट वॉज इन रिच ट्रिकी फूड, ये ट्रिकी के लिए एक बहुत ही रिच फूड था, हेल्दी फूड था। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल वेकेशन, लंच ऐसे बन गया जैसे कोई उनके घर में क्या हो, कोई सेलिब्रेशन हुआ हो। एंड 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर, भोजन के पहले वो 2 गिलास वाइन पीता था। एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और बहुत सारे जो है वाइन वो मील के दौरान लेता था। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। आई होप इट इज़